So today is our practical class and we are going to discuss phylum Invida, the fascinating world of segmented worms, from earthworms improving soil fertility to leeches with unique adaptations. You will explore real specimens, clear diagrams, and practical identification techniques. So get ready to learn fast, understand better, and master your practical exam with confidence. Outlines. We will start with general characteristics, then we will move to classification and finally explore important specimens with diagrams. By the end, you will be ready to identify and understand annelids confidently in your exams. Practical outcomes. By the end of this practical lecture, you will develop a strong understanding of phylum Annelida. You will be able to define and describe key characteristics like segmentation and body organization and identify major groups such as Polychaeta, Oligochaeta, and Herodania. We will also examine important specimens like earthworms and leeches through diagrams and differentiate annelids from other worm phyla. Finally, you will gain practical skills in drawing, label diagram, and understand their ecological and economic importance. General characteristics of phylum Annelid. Annelids are bilaterally symmetrical, they are triploblastic and truly coelomate organisms. They are found in marine, freshwater, terrestrial environment, showing their great habitat diversity. Their most important feature is the segmentation or segmented body, which is divided both externally and internally into repeated units called metameres. The body is elongated and worm-like, and many species may be burrowing, may be tube-dwelling, or free-living, or even parasitic. This segmentation provides better movement, flexibility, and specialization, making annelids highly successful organisms. तो इसमें हम ट्रिप्लोब्लास्ट की डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये तीन बेसिक लेयर्स होते हैं बॉडी के, इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। बायोलॉजिकल सिमेट्री जो हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ओनली वन प्लेन पर टू इक्वल हॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं या मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको बायोलॉजिकल सिमेट्री कहते हैं। और इनमें ट्रू सीलोम मौजूद है तो इसलिए दे आर ट्रू सीलोमेट एनिमल्स। इसके अलावा इनमें हमने मेटामेरिज्म की या मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात की। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली बाहर से भी आपको बिल्कुल डिवाइडेड नजर आएंगे सेगमेंट्स में, और इवन इंटरनली दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो इसको सेगमेंट्स भी कह सकते हैं, आप मेटामेर्स भी कह सकते हैं और सोमाइट्स भी कह सकते हैं। और इनकी जो बॉडी है ये वर्मिफॉर्म है, वर्म लाइक बॉडी है। Their bodies show an organ grade level of organization where different organ systems perform specific functions. देखिए प्रोटोजोन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पोरिफेरा में सेल्स एक साथ जमा हो गए और उन्होंने सेलुलर ग्रेड ऑफ लाइफ बनाया। उसके बाद हम प्लेटिहेल्मिन्थ्स, नेमेटोड्स में गए और अब एनेलिड्स में। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम है लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्व्स, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। हर एक सिस्टम अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं लाइक अर्थवर्म फ्रॉम ओलिगोचीटा एंड लीच फ्रॉम हेरोडिनिया एंड देन नेरीज फ्रॉम पोलीचीटा। The epidermis is a single layer of columnar cells covered by a thin non-chitinous cuticle. तो अगर हम इसकी एपिडर्मिस की बात करें तो सिंगल लेयर होती है एक कॉलमनर सेल्स की, और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है क्यूटिकल की, जो कि काइटिन से नहीं बना हुआ है। अब ये कॉलमनर सेल्स को समझने के लिए आसान सी बात यह है कि इस तरह की स्ट्रक्चर, इसको हम कॉलमनर कहते हैं, कॉलमनर स्ट्रक्चर और कॉलमनर सेल्स। इसके अपोजिट में जो इस तरह के सेल्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर के, तो ये स्क्वेमस, इसको कहते हैं, ये स्क्वेमस सेल्स हैं, स्क्वेमस, और ये कॉलमनर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है
The body wall form a dermomuscular system with outer circular and inner longitudinal muscle helping in movements. तो अब अगर हम इनके डर्मोमस्कुलर बॉडी वॉल को देखें तो जो आउटर मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं और इनर की तरफ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल है। सर्कुलर मसल्स सर्कल के फॉर्म में होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल इस तरह पहले होते हैं लॉन्गिट्यूडनली इन देयर बॉडीज। और अगर आप एथॉम में देखें तो ऐसे जो बॉडी में पहले हुए हैं ऐसे सीधे ये लॉन्गिट्यूडनल है और जो इस तरह सर्कल फॉर्म में है तो वो सर्कुलर मसल्स हैं जो इनकी हेल्पिंग में मूवमेंट करते हैं। और when present appendages are not jointed and locomotion is mainly through CT or CT, which may be supported by parapodia in some groups. These features make inlets highly efficient in movement and adaptation. तो देखिए अपेंडिजेस को पहले आप समझे। अपेंडिजेस बॉडी से किसी भी आउटग्रोथ को, जैसे हमारे हाथ बॉडी से निकले हुए हैं, पाँव निकले हुए हैं मेन बॉडी से, तो ये अपेंडिजेस है। तो इनमें जब भी अगर अपेंडिजेस मौजूद है जिन स्पीशीज में तो वो अनजॉइंटेड होंगे। देखिए आर्थ्रोपोड में जॉइंटेड लिम्स होते हैं और इनमें अनजॉइंटेड होते हैं। और इसके दो फॉर्म हैं, एक उसको आप पैरापोडिया कह सकते हैं और एक को आप चीटी और सीटी कह सकते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है पहले वो ये है कि जो पैरापोडिया है ये फ्लैश मतलब फ्लैशी होते हैं, मीट के बने हुए होते हैं। लाइक आप सिंपल अल्फाज में ये कहें कि फ्लैशी होते हैं। और जो सीटी है या चीटी है ये काइटेनियस होते हैं, ये काइटिन से बने हुए होते हैं। तो इसमें आप देखिए ये जो बड़े आपको नजर आ रहे हैं ये पैरापोडिया है फ्लैश लाइक, और जो स्मॉल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं तो ये सीटी है या चीटी है जो कि काइटिन से बने हुए होते हैं। और इनमें डिफरेंस ये हो सकता है कि जो पैरापोडिया है ये स्विमिंग के लिए काम करते हैं, स्विमिंग में एड करते हैं, या ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प दे सकते हैं कुछ फॉर्म्स में। और जो चीटी है, जो काइटिनियस है, तो ये किसी चीज़ के साथ अटैच होने में इनकी मदद करते हैं। और इसके अलावा जो है ये आप इनको कहें कि ट्रैक्शन कंट्रोल है किस्म का, और अटैचमेंट है किसी चीज़ के साथ एंकरेज के लिए इनकी मदद करते हैं। They possess a true schizocilious coelom divided into compartments by septa and filled with coelomic fluid. तो ये जो एनिमल्स हैं इनमें शाइजोसीलियस सीलोम है। शाइजोसीलियस सीलोम कैसे बनता है? जब मेसोडर्म दरमियान में से स्प्लिट होके कैविटी बना लेता है और उसमें जो सीलोम बन जाता है इसको हम कहते हैं शाइजोसीलियस सीलोम। और हमने ये भी डिस्कस किया पिछले स्लाइड में कि ये चूंकि मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड होते हैं, तो शाइजोसीलियस सीलोम भी इस तरीके से कंपार्टमेंट्स में या सेप्टा में डिवाइडेड होता है। Alimentary canal is complete, extending from mouth to anus with digestion occurring extracellularly. तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसी को कहते हैं जो माउथ से शुरू होकर एनस पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर आप माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस देख सकते हैं। इसके अलावा respiration takes place through moist skin और gills, especially in parapodia in some species. तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू जनरली होती है लाइक इन आर्टवर्म। तो इनमें जो मॉइस्ट स्किन होती है उसकी थ्रू डायरेक्ट गैस एक्सचेंज होती है और रेस्पिरेशन इस तरीके से हो सकती है। कुछ में गिल्स की थ्रू भी हो सकती है और पैरापोडिया की थ्रू भी, जो कि हमने पिछले स्लाइड में कहा कि पैरापोडिया आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, या हेड के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जो एनालिड्स हैं दे हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विद ब्लड कंटेनिंग हेमोग्लोबिन। कभी एक्सीडेंटली आप जब जमीन में काम कर रहे होते, खुदाई कर रहे होते, और अचानक से उसमें आतवाम कट जाता है तो आप उसका रेड ब्लड आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका रेड ब्लड निकल जाता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज, बिकॉज जो ब्लड है ये क्लोज वेसल्स में बहता है। और इसके अपोजिट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पर कोई इस किस्म के वेसल्स नहीं होते हैं, बल्कि ब्लड जो है वो सारे सेल्स को बात करके निकल रहा होता है और उनमें वेसल्स नहीं होते हैं। Excretion occur through nephridia which are segmentally arranged and help in waste removal. तो ये हमने कहा कि दे आर लाइक मेटामेरिकली सेगमेंटेड
और हर एक सेगमेंट अलग अलग है। तो नेफ्रिडिया जो है ये भी हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं अलग अलग। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐसी है कि एक फनल शेप होता है जो कि सीलोमिक फ्लूइड में ऐसे सस्पेंड होता है, और वहां से वो जो फ्लूइड है या उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उसको सक कर लेता है, जज़ब कर लेता है वहां से, और फिर वो इसी तरह नेफ्रिडियम में इस तरह फ्लो करके आगे जाता है। यहाँ पर उससे जो इम्पोर्टेंट आयंस होते हैं या और कोई इम्पोर्टेंट चीजें होती है जिस्म के लिए, मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं, सॉल्ट्स, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और द रेस्ट जो कि एक्सक्रीटा होता है वो एक पोर के जरिए, जिसको नेफ्रेटिव पोर कहा जाता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में उसको रिलीज कर दिया जाता है। The nervous system consists of a pair of cerebral ganglia acting as brain, with a double ventral nerve cord and segmentally arranged ganglia. तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद है जो ब्रेन की तरह काम करते हैं, और ये इनके हेड रीजन में मौजूद होते हैं। फिर वहां से दो डबल वेंट्रल साइड पे दो नर्व कॉर्ड जो है वो निकले हुए होते हैं, और ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि दे आर मेटामेरिकल सेगमेंटेड। तो हर एक सेगमेंट में फिर गेंगलिया होते हैं जो कि इस नर्व कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और गेंगलिया के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये नर्व सेल्स होते हैं जो कि एक जगह जमा हो गए होते हैं। They also possess a well-developed receptors organs like tactile organs, photoreceptors and sometimes eyes भी इनमें मौजूद हो सकती है। Most annelids are hermaphroditic, monoecious होते हैं, although some have separate sexes। तो कुछ में सेपरेट भी हो सकते हैं और कुछ में जो है वो hermaphrodite भी हो सकते हैं, मीन के मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। जो डेवलपमेंट है, सो देयर डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। If it is indirect, so there will be a larva which is known as trochophore larva। तो अगर फॉर एग्जांपल इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट है, जैसे ही ये एग्स होते हैं और फिर वहां से फर्टिलाइज एग से एडल्ट बन जाता है डायरेक्टली, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म भी है जिनमें इनडायरेक्ट है, जिसमें लार्वल स्टेज भी होती है। तो जहाँ जहाँ अगर लार्वल स्टेज है तो वहां पर ट्रोकोफोर लार्वा भी मौजूद होगा, उसके बाद फिर एडल्ट आ जाता है। Another important feature is their ability for regeneration। और रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप उनको 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट अलग से रीजनरेट होके नए ऑर्गेनिज्म में जो है वो डेवलप हो सकता है। And in some species, asexual reproduction also occur, through fragmentation, through budding or fission. So these adaptations make annelids highly versatile and successful organisms. Classification of Annelida. Approximately 8,700 known species are grouped based on features like parapodia, CT, and segmentation. Annelids are divided into four main classes. Polychaeta, they are mainly marine with parapodia and many CT. Number two is Oligochaeta, they are terrestrial or living in freshwater without parapodia, few CT. Third one is Herodania. These are leeches with suckers at both ends, no CT. And fourth one is Archinellida. These are primitive marine forms without parapodia or CT. Class 1 is Polychaeta, where poly means many and cheetah mean bristles। तो आप इनकी बॉडी के ऊपर ये ब्रेसल लाइक या ये चीटी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोलीचीटा। और अगर इनके एग्जाम्पल आप देखें, सो एग्जाम्पल आर नेरीज, सबेला, स्पाइरोब्रांकस एंड एप्रोडाइट, and all of them they have numerous चीटी लाइक स्ट्रक्चर, ब्रेसल लाइक स्ट्रक्चर, तो इस वजह से इनको पोलीचीटा कहा जाता है। They are mostly marine annelids and are often carnivores in nature. Their body shows both internal and external segmentation, with a well-developed head bearing eyes, tentacles, and palps. A key feature is the presence of numerous setae or lateral parapodia, which help in movement and respiration. Unlike other annelids, the clitellum is absent. They have spacious coelom
and the alimentary canal include an eversible buccal region and protrusible pharynx. तो इनका जो बकल कैविटी होती है ये एवर्सिबल होती है, मतलब ये इनको एवर्ट करके बाहर की तरफ निकाल के प्रे को कैप्चर करके इनगल्प कर सकती है, और इसी तरह इनका फेरिंक्स जो है ये भी बाहर माउथ के थ्रू निकल सकता है। Sexes are separate, fertilization is usually external, and development involves a trophophore larva. इसका मतलब ये हुआ कि they have indirect development जिसमें लार्वा मौजूद होता है। So these features make polychaetes highly adapted marine worms. Class 2 is Oligochaeta, where oligo means few and chaetae means bristles. तो चूंकि इनमें बहुत कम चीटी या ब्रिसल्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इनको ओलिगोचीटा कहा जाता है। These annelids are mostly terrestrial, ये जमीन पर ज्यादा रहते हैं। Though some are found in fresh water, their bodies shows clear segmentation, but the head is indistinct. मीन जिनका जो क्लियर है वो हेड जो है वो क्लियर नहीं होता कि आपको पता चले कि ये इनका हेड है प्रॉपरली। जिस तरह पोलीचीटा में था वहां पे हेड रीजन बहुत बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको हेड क्लियर नजर नहीं आएगा। And it also lacks sensory organs. They have few setae embedded in the skin, and importantly, parapodia are absent in these creatures. जो ओलिगोचीटा है इनमें पैरापोडिया नहीं है। इसके अलावा a key feature is the presence of a glandular clitellum. क्लाइटेलियम जो है ये इस तरह का एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो कि हमने पढ़ा कि ये पोलीचीटा में एब्सेंट है, वहां पर नहीं है। It's an organ which secrete mucus to bond worms during copulation. It also create a chitin-like cocoon for egg deposition. वो जब एग डिपोजिट होते हैं या एग डिपोजिशन होती है तो ये कोकून लाइक स्ट्रक्चर उनके इर्द गिर्द बुन लेता है और उसमें एग्स जो है उनको बंद कर देते हैं, और कॉपुलेशन के दौरान भी ये बॉन्डिंग में जो है वो हेल्प करता है। Oligochaetes are hermaphroditic, sexes are in one individual, both sexes male and female, and shows direct development, so there is no larval stage. These adaptations make them highly successful, especially in soil ecosystem. Class 3 is Herodina, and Herodo mean a leech. Most members are ectoparasitic and blood-sucking, although some are carnivores. Their body is elongated, flattened, and consists of a fixed number of segments, mostly 33, divided into smaller rings called annuli. Unlike other annelids, parapodia and setae are absent, and both ends of the body bear suckers used for attachment. So you can see the posterior and the anterior sucker, and these are used for attachment. The coelom is reduced, forming hemocoelomic sinuses. They are hermaphroditic with internal fertilization, and eggs are laid in cocoons. Development is direct without a larval stage. These features makes leeches highly specialized parasitic annelids. Class 4 is Archanelida, where arc means primitive or first. Because they are primitive or first annelids, that's why they are named Archanelida. These are exclusively marine annelids, mean they are all marine, with simple elongated worm-like body. तो यहाँ पर आप इनकी बॉडी देखिए, बिल्कुल सिंपल worm-like बॉडी है इनकी, and they lack setae and parapodia, making them structurally simpler than other annelids. Their external segmentation is faint. आप देखिए तो इनकी जिस तरह पोलीचीटा में या ओलिगोचीटा या हेरोडिनिया में क्लियर सेगमेंटेशन नजर आती है, यहाँ पर वो सेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल जो है वो इतनी क्लियर नहीं है, बट इनकी जो एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन है दैट इज वेरी मच गुड because of the presence of coelomic septa. The prostomium bears 2 to 3 tentacles which helps in sensory function. जो प्रोस्टोमियम है ये माउथ से पहले आने वाला हिस्सा है, और यहाँ पर मोस्टली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। Sexes are usually separate, though some may be hermaphroditic, and development
is typically include a trochophore larva, which means the development is indirect and trochophore larva is there. एग्जाम्पल में आप पोलिगोडियस डाइनोफेलस और प्रोटोडेलस जो है वो देख सकते हैं. These representing the primitive annelid forms. Classification of phylum Annelida. Phylum Annelida is divided into four classes: Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinea, and Archinellida. Polychaeta is further divided into two orders. Examples are given. Oligochaeta is also divided into two orders. Examples are given. Hirudinea is divided into three orders with examples, and Archinellida is also divided into two orders, and examples are also given there. Now it's practice time. You need to draw the label diagrams of these selected important specimens in your practical notebooks. So the first one is Nereis, number 2 is Amphitrite, number 3 is Ernicola, 4 is Chitopterus, 5 is Savilla, 6 is Aphrodite, 7 is Glycera, 8 is Earthworm, 9 is Leech or Herido, 10 is Tubifex, 11 is Oligordius, 12 is Protodilus, and 13th or the last one is Acanthopdella or again it's Herodinia. Thank you for watching. If you found this practical lecture or this practical class, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more zoology contents. You can find the link in the description below and feel free to ask questions in the comment section. See you in the next lecture. Keep learning and stay curious.